बाबा जी, मैं आप तो जानो जान है, मैंने क्या कहना है आपके सामने। क्या जो अपना घर बचाने के लिए हमें सारे रिश्ते कुर्बान करने पड़ते हैं? बेटा देखो, जिंदगी में जो मालिक ने किस्मत में लिखा है ना, वो तो मिलेगा। जो किस्मत में नहीं लिखा, वो कोई दे नहीं सकता। अब अगर उसके हुक्म में रह के हम अपनी मन की शांति बचा के रखेंगे, हमारी बेहतरी होगी। लड़ाई झगड़े से कोई चीज़ मिल भी जाए, उसमें से खुशी नहीं होती बेटा। सो इसलिए बेहतर यही है, जो काम प्रेम और प्यार से हम निपटा सकते हैं, वो गिले शिकवे से हासिल चाहे जो मर्जी कर लें, मगर उससे खुशी नहीं मिलेगी बेटा। बाबा जी, ऐसे पति पत्नी के रिश्ते हमारे यही होता है। वो बोलता है माँ बाप को छोड़ दो, तो हम माँ बाप को कैसे छोड़ने? आप बोलते हैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। नहीं बेटा, देखो, आदमी को ध्यान की कमी होती है, इसलिए वो कहता है। अगर आप उसकी तरफ अपनी सारी जिम्मेवारी पूरी करेंगे ना, तो वो अपने आप कहेगा कि भाई माँ बाप का भी ध्यान रखो। ती बाबा जी छोटा सत्संग सुने बिना नामदान क्यों नहीं मिलता जी? बेटा मकसद ये है कि ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤਮਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ। जी Hi, Baba ji. So school and college was really nice, but now I'm entering into the real world and I'm like really struggling to find my place in the real world. Like I gave GMAT, it went badly. Then I did a job, I'm not interested. Business, not interested. Like I'm not passionate about anything. So I don't know like how to choose. And if I choose, how to like stick to it without feeling like FOMO and keep switching. Beta, at the ending of the day, it's our actions that will decide our future. So unless we don't apply ourselves and unless we don't make an effort, nothing is going to happen on its own. Our parents just can create a positive environment for us, but unless we don't apply ourselves and we don't cherish and go forward, then we'll be stuck out there, beta. So we have to do it for our own sake, na? So take your time in deciding, but once you've decided, then focus on that. But what to decide? Can you give me like a definite thing? And then I No, beta, unless you don't focus, unless you don't study and get on your feet in anything, to make anything successful, there are two ingredients. One is time and the other is attention. Whether it's your relationships, anything, if you don't give it time or you don't pay attention, nothing is going to happen. So sometimes at this age, beta, we take everything very lightly. It's okay. I'm not saying that one should become very serious also, but there is a time for everything. So if we want to go forward, we need to sort of be a little serious on our work. Rest of the day you can enjoy yourself. But that application has to be there. Thank you, Babaji. My second question is that I feel like I'm a very like transactionally human being. Like I don't like accepting help and I also don't like helping people. So how do I like open myself up and be more like receptive? But no man is an island. We are living in a society where we can't segregate ourselves. So each one of us, we are all interdependent, beta. So to say that we can isolate ourselves, live by ourselves and do everything by ourselves, that's not humanly possible. You see, so let's start with trying to help others. And there is more pleasure in giving than in receiving, beta. So if we are able to do that, we are doing it for ourselves, not for anybody else. Thank you so much, Babaji. रासोमी बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन कैरियर प्रोग्रेशन से है। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन इंडियन एयरफोर्स कि ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ 'ਚ ਸਬਰ ਕਰੋ,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਅੰਬਿਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਹਰੇਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਣ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਇਰਾ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ। Babaji, we all know that our life is very precious. Babaji, I'm serving in the army, and in the army there are times when you have one person have to sacrifice his life to save his comrade. So does that mean that the life of the person is wasted? Beta, nothing is ever wasted. You know, the time of taking birth and the time of going is predetermined. Nobody can change that. You know, we think that by putting ourselves in danger or doing this, I might die sooner. You are going to die the day he wants you to die. So beta, if we are there to help our sort of comrades and support them, why not? Babaji, आत्मा और मन जो है ये सच में अलग क्रिएशन से या फिर ये हमें समझाने के लिए, आसान करने के लिए बताया जाता है? बेटा, आत्मा परमात्मा तो एक है, मन एक इंस्ट्रूमेंट समझ लें जिसके जरिए सब कुछ होता है, और प्रभावित मन होता है, आत्मा नहीं प्रभावित होती। मगर कहीं ना कहीं जैसे घर में बच्चा है, उसको प्यार से हम बिगाड़ लेते हैं तो सहना किसको पड़ता है। सो हमने मन को प्रभावित करके उसको आज़ादी दे दी, इसीलिए वो गलत चीज़ों की तरफ खींचता है। बिगाड़ा भी हमने है तो काबू भी हम नहीं करना है बेटा, क्योंकि सहना तो आत्मा को पड़ेगा ना। Babaji, thank you for being my friend. That is for me, बाबा जी। बाबा जी, मेरा क्वेश्चन है कि लाइफ में सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है? बेटा, जब मन कंट्रोल में आ जाए, मन में तृप्त आ जाए, सहज आ जाए, वो सच्ची सक्सेस है। पैसा तो बेटा बेवकूफ़ भी बना सकता है, मगर जो अपनी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से हल कर सके, वो सच्चा सक्सेसफुल है। बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम आपको देखते हैं हमें रोना क्यों आता है? ये तो आप बताएं। नहीं ठीक है। बेटा, जहाँ भी प्यार का रिश्ता होता है ना, अब जैसे हम माँ बाप को छोड़ के पढ़ने के लिए जाते हैं या काम काज के लिए जाते हैं, उस वक़्त भी हमारी भावना, हमारी इमोशन सामने आ जाती है। तो प्रेम और प्यार की भावना की बात है बेटा। बाबा जी, एक और सवाल। आपने कहा सब कुछ डेस्टिन्ड है, लेकिन अगर मैं मालिक को मांगू तो मुझे वो नहीं देंगे। नहीं बेटा, देंगे तो सही, मगर कदर करेंगी तभी तो संभाल पाएंगी ना। अगर हम कदर नहीं करेंगे, अब इंसान मांगता तो बहुत कुछ है, अब जब से हम होश संभालते हैं हमारी मांग शुरू हो जाती है, मगर उन चीज़ों का चाव कुछ दिन रहता है, फिर इंसान कुछ और मांगना शुरू कर देता है। तो आज तक इंसान को समझ नहीं ये कर सका कि इसको क्या चाहिए। सो ये सोचता है कि मांगने के साथ ये चीज़ें हासिल हो जाएंगी, मेरे को खुशी होगी, वो मिल जाती हैं, खुशी 4-5 दिन रहती है, फिर वो और किसी चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो बेटा, जब हम अपने मन की गहराई से उस चीज़ को मांगेंगे ना, ज़रूर हासिल होगी और कदर भी होगी। इस वक्त हमने सत्संग सुना है, शायद किताबें पढ़ी हैं, एक सोच है। सो जब वो गहराई में आपकी करनी से जाहिर होगी ना, फिर कदर होगी।
और फिर मालिक पूरी भी करेगा। ਆਪਣੇ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਿਆ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਗਰਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਬੇਟਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਮੰਗਦਾ ਬਖਸ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲਈਏ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਫਿਰ ਭੀੜ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। बाबू जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग ना चाहते हुए भी आजकल फोन की बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, तो हम इससे कैसे दूर रख रहे हैं? बेटा क्या किसी चीज की हम गुलामी करनी स्वीकार करेंगे? तो ये भी तो एक तरह की गुलामी है बेटा। तो आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है, मगर उसके मोहताज होकर रह जाएंगे तो बेटा फिर आगे जाके दिक्कत आएगी। उसमें कौन सी ऐसी ताकत है या ऐसी चीज है जो हमें इतना मोहित करती है? पहले जब हम छोटे थे उस वक्त कहाँ कोई सेलफोन होता था, कंप्यूटर होता था, टीवी होती थी। हम भी तो बचपन गुजारा ही है। आजकल सारी चीजें आपके पास हैं और फिर भी बच्चे बोर हो जाते हैं। सोच समझ के बेटा। रास्ता में बाबा जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डील विद अ नार्सिसिस्ट, क्योंकि वो हमें हर उस चीज के लिए गिल्टी फील करवाते हैं जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते। बेटा दुनिया कभी नहीं बख्शेगी। 4 अच्छा कहेंगे, 4 बुरा कहेंगे। आपकी खुशी आपके हाथ में है। उन चीजों का असर सिर्फ उस वक्त तक रहेगा जब तक आप उनको सुनती हैं। और अगर हम इतने कमज़ोर हैं कि हर एक के बोलने के साथ उस चीज़ को दिल से लगा के बैठ जाते हैं, तो फिर ज़िंदगी नहीं काटी जाएगी बेटा। दुनिया अपनी आदत से मजबूर है। हमने अपने आप को इतना ताकतवर बनाना है कि दुनिया चाहे जो मर्जी करे करे और कहे, हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना बेटा। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या बिना नामदान के भी हमें उस परमात्मा के आंतरिक दर्शन हो सकते हैं? बेटा ये रिश्ता ही प्रेम और प्यार का है। अब ये सोचना कि सिर्फ एक रास्ते से मालिक मिलेगा, ये तो अहंकार हो जाएगा ना। तो जो भी प्रेम और प्यार की भावना के साथ उसकी भक्ति करेगा, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, मालिक उसके ऊपर बख्शिश करेगा बेटा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या गुरु की निगाह मात्र से ही जीव का उद्धार हो जाता है? नहीं बेटा, हम हर चीज का ना एक बाहर का तर्जमा करके बैठ जाते हैं। जो मिलेगा अंदर से मिलेगा। और ये जो दर्शन की बात भी हम करते हैं, नजर की बात हम करते हैं, ये सब चीजें अंदर की हैं, ना कि बाहर की। वाणी में भी हम पढ़ते हैं ना, दर्शन पेटत पाप सब नाशे। वो अंदर के दर्शन है। अगर बाहर के दर्शन होते या उसका बाहर से उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ जाए तो फिर तो सारे ही मुक्ति हासिल कर लें बेटा। तो ये तो
अंदर की बात है, जब हम अपना ख्याल इकट्ठा करके अंदर लेके जाएंगे। बाबा जी, मुझे हर जगह आप नजर आते हो, हर स्वरूप में आप नजर आते हो। मतलब हर स्वरूप में अट्रैक्शन होता है आपका, हर नाम में। क्या है, मतलब मैं सही हूँ? बेटा देखो, परमार्थ में ना बेटा, सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए पहचान चाहिए बेटा। इस वक्त हमें पहचान नहीं है, हमें सच का एहसास नहीं है। हमारे मन में कुछ ख्याल बन जाते हैं, कंसेप्ट बन जाते हैं, और हम उन कंसेप्ट को लेकर ना आगे बढ़ रहे हैं। तो मालिक ने ये जो इंसान का जामा बख्शा है ना, विवेक की ताकत दी है कि हम पहचान सकें कि सच क्या है और भ्रम क्या है। बाबा जी, वो भ्रम कैसे पहचानेंगे? बेटा भजन बंदगी, जब आप हमें अंदर से उस चीज का अनुभव होगा। अभी तो हम अपने ख्यालों की दुनिया में बैठे हैं बेटा, अपने ख्यालों से हमने कुछ बनाया हुआ है, उसके ऊपर चल रहे हैं। बाबा जी के नाम मेरे पेरेंट्स हो, मेरा कोई घर भी नहीं है। मेरा पक्का घर, जो आपका घर है वही बच्चों का घर, पेरेंट्स का घर ही बच्चों का घर होता है। जो आपका असली घर है वही मेरा भी असली घर है। तो आप भजन सिमरन के द्वारा मुझे अपने असली घर ले जाना। बेटा यही तो महाराज जी सत्संग में फरमाया करते थे ना, कि हमारा जो सच्चा घर है वो तो सचखंड है। यहाँ तो हम थोड़ी देर के लिए, कुछ पलों के लिए, दिनों के लिए, महीनों के लिए हम किसी कार्य के लिए आए हैं, और जो हमारा सच्चा धर्म है वो प्रेम है, प्यार है बेटा। तो जब हम उस सच्चे धर्म को अपना के, असल खुशी मिलेगी जब हम वापस अपने सच्चे घर पहुंचेंगे। यहाँ तो एक जिम्मेवारी है, कर्मों के साथ जुड़ी हुई है, उसको खत्म करने के लिए आए हैं बेटा। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਵਧੂਗਾ, ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ बैलेंस रखना चाहिए है। बाबा जी, मुक्ति प्राप्त करने के इंसान ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? नहीं कोई लोड़ नहीं। जे तुसी समझदे हो कि मैं इत्थे बहुत खुश हैं तो बड़ी खुशी नाल रहो बेटा। ये तो सोच है कि मैनू इस दुख सुख दी नगरी चों मैं अगे वध के अपने परम पिता परमात्मा कोले जाना बेटा। अगर जे थोनू ये ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ, ਮਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ। बाबा जी, ना मन लागे ना विवेक जागे, कैसे पुकारो उस राम नाम को। ना कदर आवे ना झुकाव साजे, किस मुख से पुकारो उस हरि नाम को। मुझ में कदर, विवेक और झुकाव की काफी कमी है, उसे कैसे पूरा करूं? बेटा कमी किसमें भी नहीं है। देखो ये जो बाहर की दौलत है ना, इसका ताल्लुक कर्मों के साथ है। जो परमार्थ की दौलत है, रूहानियत की है, वो मालिक ने सभी को एक जैसी दी है। फर्क पहचान का है बेटा।
राम नाम जप अंतर पूजा, गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा। ठीक है ना? जब हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना राम का, जो हमारे अंदर रम रहा है, हमारे अंग संग है, हम सो इसलिए रूहानियत तो एहसास है बेटा, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है। बाबा जी, मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए? बेटा देखो, मन को बागी किसने किया है? हम ही ने किया है बेटा। मन प्रभावित हो जाता है, हमने गलत प्रभाव उठाए हैं, इसीलिए इस वक्त हम मन की गुलामी करके चल रहे हैं। तो क्या सारी उम्र हम गुलामी चाहेंगे कि खुद मुख्तियार होना चाहेंगे? तो बेटा कबीर साहब की बानी है, कबीर मन तो एक है, पावे जहां लगाए, पावे गुर की भक्ति कर, पावे विषय कमाए। वो ही मन है जो मालिक की भक्ति कराएगा अगर आपके काबू में है, और वो ही मन है जो इंद्रियों के भोगों की तरफ खींचता है। अब ये आपके ऊपर मुनस्सर है कि आप मन को काबू करके सही रास्ते पे लेके जाएंगे या हथियार छोड़ के मन के अधीन होके चलेंगे बेटा।